हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इसमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। रनिंग वाटर वाले हमने पढ़ लिए थे, अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है एवियल फैन। एवियल फैन आर formed when stream following from higher level break into foot slope plane of low gradient, यानी हाई लेवल से लो लेवल में आती है। Normally very coarse load is carried by stream following over mountain slope. This load became too heavy for the stream to be carried over gentler gradient and gets dumped and spread as a board low to high cone shaped deposit called alveolar fan. Usually, the stream which flow over fans are not confined to their original channels for long and shift their position across the fan, forming many canals called distributors. यानी जो जो भी हाई लेवल से लो लेवल में जो भी हमारे मटेरियल आ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, एलवीएल फैन कहेंगे। और इसमें ये भी बताया है इन्होंने कि जो कौन शेप के होंगे, डम्प्ड होंगे और जेंटलर होंगे, ब्रॉड होंगे, मतलब थोड़े से ज्यादा बड़े होंगे, उसे हम एलवीएल फैन कहेंगे। एलवीएल फैन इन ह्यूमिड एरिया सो normally low cone with the gentle slope from head to toe, and they appear as high cone with steep slope in arid and semi-arid climate. ये ज्यादातर हमें ह्यूमिड एरिया या फिर एरिड यानी जहाँ पे हमारा डेजर्ट का एरिया रहता है वहां पे हमें ज्यादातर देखने को मिलते रहते हैं। ये इसकी पिक्चर दिखाई गई है कि एन एलवीएन फैन डिपोजिट बाय ए हिल स्ट्रीम। अब हिल स्ट्रीम से देखो नीचे आके ये यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं मटेरियल्स ऑन द वे ऑफ अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर का जो ये दिखाया। फिर है हमारे डेल्टास कैसे बनते हैं, तो देखिए जो डैम शेप के बोल्डर जैसे हमारे शेप के होंगे वो एलवीएल फैन होंगे। डेल्टास उन्हीं से बने। डेल्टास आर लाइकली एलवीएल फैन बट डेवलप एट ए डिफरेंट लोकेशन। होते सेम वही है लेकिन उनकी लोकेशन डिफरेंट हो जाती है। द लोड कैरीड बाय द रिवर्स इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। ऐसी जगह जहाँ पे ये पूरा का पूरा लोड कैरी करके रिवर के थ्रू और फिर एक सी में मिल जाते हैं, और जहाँ पे ये मिलते हैं उसी को हम कहते हैं डेल्टास। If this load is not carried away far into the sea or distributed along the coast, it spread and ये देखो डेल्टा का फॉर्मेशन दिखाया है क्योंकि ये सी में जाके है ना स्प्रेड हो रहा है पूरा का पूरा, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। Accumulate as low cone. Unlike in alveolar fan, the deposit making up deltas are very well sorted with clear certification. The coarest material settle out first and the finer friction like silts and clay are carried out into the sea. As the delta grow, the river distributaries continue to increase in length and delta continue to build up into the sea. सी को उसने बिल्डअप कर देते हैं वो धीरे धीरे। आगे हमारे पास फ्लड प्लेन, नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स। अब ये भी हमारे किससे बनेंगे, डिपोजिशन से बनेंगे। जैसे फ्लड प्लेन हो गया, नेचुरल लीव्स हो गई और पॉइंट बार्स हो गए, ये सारी चीजें। डिपोजिशन डेवलप ए फूड प्लेन जस्ट एज इरोजन मेक वैलीज। फ्लड प्लेन इज मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। और रिवर डिपोजिशन से सबसे जो मेजर लैंडफॉर्म बनता है वो हमारा फ्लड प्लेन होता है। Large size material are deposited first when the stream channel break into a gentle slope। तो ये बहुत बड़े बड़े हमारे मटेरियल इसमें आते हैं और फिर धीरे 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 वो ब्रेक होते हैं और फिर उसकी जेंटल स्लोप बन जाती है। Thus normally fine size material like sand, silt and clay are carried by relatively slow moving water in gentle channels, usually
moving water in gentle channel found in the plain and deposit over the bed, and when the water spill over the bank during uh, flooding above the bed, a river bed made of river deposit is the cavity floodplain. The floodplain above the bank is inactive floodplain. Inactive floodplain above the bank basically contain two types of deposition. First, flood deposition, and second is channel deposition. In plain, channel shift enter laterally and change their course occasionally leaving cut off course which get lifted up gradually. Such areas over floodplains built up by abandoned or cut off channel contain coarse deposit. The flood deposit of spilled water carried relatively thinner materials like silt and clay. The floodplain in a delta are called डेल्टा प्ले, यानी उसके धीरे धीरे जो भी बोर्ड हमारे जैसे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उस प्लेन एरिया में कोई भी रिवर मतलब कोई भी रिवर फ्लो कर रही है और उसमें जो सिल्ट है क्ले है वो जा रहा है, वहां पे जो डेल्टास बनते हैं उसे हम डेल्टा प्लेन कहते हैं, जैसे कि ये शो हो रहा है। नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट पार्स, अब देखो यहाँ पे ऐसे 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 ये डिपोजिशन होता रहेगा होता रहेगा, और ये क्या बने लेंगे, हमारे लीव्स वगैरह बना लेंगे। और जो इसके अंदर का पार्ट होता है उसे हम पॉइंट पार्स कहेंगे, जो अंदर की साइड इसमें दिखता है, और जो बाहर बिल्कुल प्लेन जैसा दिखेगा उसे हम फ्लड प्लेन कहेंगे। डायग्राम में अभी आपको शो किया हुआ है। नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स फिगर 6.5 में हमने देखा है आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म फाउंड एसोसिएट विद फ्लड प्लेन में हमें देखने को मिलते हैं। नेचुरल लीव्स आर फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ लार्ज रिवर। दे आर लो linear and parallel ridges of course deposit along the bank of river, quite often कट इनटू इंडिविजुअल मोड्स, यानी हमारे जो रिवर्स वगैरह होती है ना उसके हमारे बैंक के साइड में या किनारों के साइड में चिपके हुए रहते हैं, उसे हम लीवीज कहते हैं। पॉइंट बार्स आर ऑल्सो नोन एज ए मिंडर बार्स, जो मिंडर बार्स जो हमें दिखती है उसके अंदर वाली साइड को हम बोलते हैं point bars. They are found on the concave side of meanders of large river and are sediment deposit in a linear uh, fash- fashion by the following water along the bank. They are almost uniform in profile and in width and contain mixed size of sediment के साथ mix होते रहते हैं. In what way do natural leaf differ from point bar? ये भी हमारे पॉइंट पार पे ही डिपेंड करती है कि इसमें कौन कौन से रीजन होते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे। इसमें देखो मिंडल शेप्स पे भी डिपेंड करती है इसकी लीवीज की। तो अब मिंडर्स क्या होते हैं, इन लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स रिवर रेयरली फ्लो इन स्ट्रेट कोर्स, लूप लाइक चैनल पैटर्न कॉल्ड मेंडर्स डेवलप ओवर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन। अब जो भी मिंडर्स बनते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्लेन और डेल्टा बनते जाते हैं। और ये जैसा इसमें शो भी है कि एक सैटेलाइट के सीन से हमें दिखता है कि मुजफ्फरपुर बिहार में जो हमारी बुराई और गंडक रिवर है उसमें ओक्सबो लेक टाइप के कट ऑफ हमें देखने को मिले हैं। ये देखो ये एकदम से अलग थलग हो गया, ये देखो एकदम ये वाले। मिंडर इज नॉट ए लैंडफॉर्म, अब मिंडर हमारा एक लैंडफॉर्म नहीं है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इज ओनली ए टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। एक क्या होता है कि टाइप चैनल होता है, तो क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग से भी आ सकता है कि लैंडफॉर्म हमारे कौन कौन से होते हैं, तो हमारा मिंडर एक लैंडफॉर्म नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग। फर्स्ट रीजन है इसका कि इसका वाटर का फ्लोइंग कैसा जेंटल ग्रेडियंट टू वर्क लेटर ऑन द बैंक्स होता है। दूसरा इसका
consolidated nature of alluvial deposit making up the banks with many irregularities which can be used by water exerting pressure laterally. अब उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी डिपॉजिट हो रहा है या इरेगुलरिटीज आ रही है उसके फ्लो में, तो उसके कारण हो सकता है। थर्ड है Coriolis force acting on the fluid water, deflecting it like it deflect the wind. जैसे कि Coriolis force हमारे विंड को डिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही हमारे वाटर के फ्लूइड की डायरेक्शन को भी डिफ्लेक्ट करता है। When the gradient of channel becomes extremely low, water flow leisurely and start working laterally. Laterally नीचे की ओर बहना स्टार्ट कर देता है। Slight irregularities along the bank slowly get transformed into a small curvature in the banks और ऐसे हमारे ये कर्वेचर बना लेता है, जैसे कि ऐसे यहाँ से यहाँ बह रहा है, फिर यहाँ बह रहा था, फिर इसमें बीच में आ जाते हैं इसके ब्रेक बार। तो जो ये इस टाइप से बन रही है, इसको हम ऑक्सबो लेक कहेंगे। आगे the curvature deepens due to the deposition on the inside of the curve and erosion along the bank on the outside. अब inside क्या होता रहेगा, डिपोजिशन होता रहेगा और उसके आउटर बॉडी में हमारा इरोजन चलता रहेगा। If there is no deposition and no erosion are undercutting, the tendency of Minder is reduced. Normally in Minder of large river, there is active deposition along the concave bank and undercutting along the convex bank. ये हमें लार्ज रिवर में देखने को मिलता है। जैसे कि क्या कि अंदर वाली जैसे कॉनकेव वाली साइड है वहां पे डिपोजिशन होता रहेगा, और जो बाहर की साइड जैसे कॉन्वेक्स टाइप का हमें दिखता है वहां पे उसका अंडर कटिंग होता रहेगा। द कॉनकेव बैंक इज नोन एज ए कट ऑफ बैंक। जहां पे डिपोजिशन होता है उसे हम कह देंगे कट ऑफ बैंक। एंड शो अप एज ए स्टीप शार्प and the convex bank present a long gentle profile. As meander grow into deep loop, the same may get cut off due to erosion at the inflation point are felt as lake oxbow lake के टाइप के जैसे बनता दिखाई देता है। आगे इसमें ग्राउंड वाटर हेयर। अब ग्राउंड वाटर से देखो डिपोजिशन से हमने पढ़ लिया हमारे क्या बनते रहते हैं इसमें, हमारे एवियल फैंस बनते रहते हैं इसमें, मिंडर लाइक वहां पे डिपॉजिट होते रहते हैं, इसमें फ्लड प्लेन आ जाता है हमारा। तो ऐसे टाइप के हमारे लैंडफॉर्म बनते रहते हैं, लेकिन मिंडर एक लैंडफॉर्म नहीं है। अब ग्राउंड वाटर से कौन से बनेंगे, हेयर द। अब देखो इसका स्ट्रक्चर भी ये हमने देख लिया है ना, कि कौन सा स्टीप होगा, कौन सा कॉनकेव होगा, कौन सा कॉन्वेक्स के जैसा दिखेगा। Above groundwater. Here, the interest is not on groundwater as a resource. Our focus is on the work of groundwater in the erosion of landmass and evolution of landform. कि इससे कैसे लैंडफॉर्म बनते, द सरफेस वाटर। अब देखो जैसे ही सरफेस पे वाटर होगा तो इतने टाइप के हमारे लैंडफॉर्म बनेंगे। सोलो होल इन सेक्शन में होता हो तो फिर ये धीरे धीरे इसको इरोज कर देगा। केव इन सेक्शन में हमारे ऐसे पिलर्स दिखने को मिलते हैं। स्टे स्टेलेक्साइट और स्टेलेग्माइट हमारे जैसे देखने को मिलते हैं उसमें। और यहाँ पे कोलैप्सिंग्स हो जाती है, जैसे धीरे 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 इरोजन होता रहता है। सिंक होल बनते हैं, सिंक होल अगर और ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो वेलीज बन जाती है, सिंक वेल। तो ये ग्राउंड वाटर के ही हमारे लैंडफॉर्म है। अब प्री कोलेट्स वेल द rocks are permeable, thinly bedded and highly jointed and cracked. After vertically going down to the some depth, the water under the ground flow horizontally through the bedding plane, joints or through the materials themselves. It is this downward and horizontal movement of water which causes the rocks
टू इरोड। अब जो हमारा हॉरिजॉन्टल और डीप में या डाउनवर्ड जो भी हमारा वाटर जा रहा है उससे क्या हो रही है, हमारी रॉक्स इरोड हो रही है। फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मूविंग ग्राउंड वाटर इज इन सिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग लैंडफॉर्म। और उसी से ही जो फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस जो उसमें हो रहा है उसके प्रोसेस से लैंडफॉर्म बनते हैं। That's that is why the result of the work of groundwater can't be seen in all type of rocks। हम ग्राउंड वाटर क्या होता है कि हर किसी टाइप की रॉक को हम इरोड नहीं कर सकता या उसे कट नहीं कर सकता। बट इन रॉक्स लाइक लाइमस्टोन और डोलोमाइट rich in calcium carbonate, the surface water as well as groundwater through the chemical process of solution and precipitation deposition develop varieties of landform। अब जहां पे भी हमारी डोलीजी देखने को मिलती है यानी हमारा जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई कोई भी रॉक हमारी होगी, तो वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसका इरोजन करने लग जाती है सरफेस पे। और फिर उसमें प्रिसिपिटेशन से क्या होता है, डिपॉजिट होता रहता है हमारा वाटर और उससे फिर नए नए लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। दीज टू process of solution and precipitation are active in limestone or dolomite, occurring either exclusively or interbedded with other rocks. Any limestone or dolomite region showing typically landform produced by action of groundwater through the process of solution and deposition is called crust topography। अब crust topography कौन सी होती है, जिससे ग्राउंड वाटर से हमारे लैंडफॉर्म के प्रोसेस बनते हैं केमिकल प्रोसेस से, उसे हम crust topography कहते हैं। After the typical topography developed in limestone rocks of crust region in the Balkans adjacent of Arctic, uh, Adriatic Sea। एड्रियाटिक सी में हमें देखने को और बाल्कन वाले जो भी रीजन है उसमें हमें देखने को मिलता है। The crust topography is called characterized by the erosional and depositional landform। अब ये जो क्रस्ट टोपोग्राफी होती है उससे हमारे टू टाइप्स के लैंडफॉर्म बनेंगे। पहला तो हमारा इरोजनल होगा, दूसरा हमारा डिपोजिशनल होगा। इरोजनल लैंडफॉर्म, इरोजनल से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनेंगे, जैसे पूल हो गया, सिंक होल हो गए, लैपीज हो गया एंड लाइमस्टोन हो गया। जैसे कि हमने पढ़ा था ना रनिंग वाटर के डिपोजिशन से और इरोजन से टू टाइप का, वैसे ही इसमें भी टू टाइप होंगे हमारे ग्राउंड वाटर के इरोजन से और ग्राउंड वाटर के डिपोजिशन से। कौन कौन से लैंडफॉर्म बनेंगे, अब इरोजनल लैंडफॉर्म से बनेंगे हमारे पूल, सिंक होल, लेपीज एंड लाइमस्टोन प्रीवेंट्स। स्मॉल टू मीडियम साइज round to sub-rounded shallow depression called shallow holes form on the surface of limestone through solution। Sinkhole are very common in limestone crust area। crust area में क्या है, हमें देखने को मिल जाता है, limestone वाली rock में जाता है। A sinkhole is an opening more or less circular at the top and funnel shaped towards the bottom with size varying in area from a few square meter to hectare and with the deep from less than half a meter to 30 मीटर और मोर। जैसे कि इसमें हमें दिखाया गया हमारे सिंक होल ऐसे टाइप के, इसमें स्क्वायर फीट में होते हैं, 30 मीटर तक ये हमारे डीप में भी चले जाते हैं। तो ये एंड इसमें है आगे some of these from slowly solely through the solution acting and the others might started as a solution form first, and if the bottom of a sink from the roof of a void or cave underground, it might collapse leaving a large hole opening into a cave or a void below collapse sinks। collapse के थ्रू क्या करता है वो और ज्यादा बड़ा होता है। Quite often sinkholes are covered up with soil, metal and appear as a shallow water pools। Anybody stepping over such pools would go down like it happened in quicksands in desert। जैसे हमें
हमारे डेजर्ट के एरिया में भी ऐसी शेप पूल्स के टाइप में देखने को मिलती है। द टर्म डू लाइन इज समटाइम्स यूज टू रेफर टू द कोलैप्स सिंक्स। कई टाइम क्या हो जाते हैं, ये सिंक्स हमारे कोलैप्स भी होने लगते हैं। सॉल्यूशन सिंक्स आर मोर कॉमन देन द कोलैप्स सिंक्स। Quite often the surface runoff simply goes down so solo and sinkhole and flow as the underground stream and remerge at the distance downstream through a cave opening। और जैसे कि केव ओपनिंग में हमने जैसे स्टेग स्टेगलस्टाइट और स्टेगलमाइट जैसे हमारे जो लैंडफॉर्म हमें देखने को मिले थे, वो हमारे डिपोजिशन से थे। आगे इसके अंदर when sinkhole and two lines join together because of spalling of material along their margins or due to roof collapse of cave along narrow to wide track called valley sink or Evlas form. Gradually, most of the surface of the limestone is eaten away by these pits and trenches, leaving it extremely irregular with a maze of point grooving and ridges और लेपिस। लेपिस के फॉर्म में भी हमारे बहुत से लैंडफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। इरेगुलर फ्लो ऑफ वाटर का होगा, स्पेशली दीज ridges or lapis form due to differential solution activity along parallel to subparallel joint. The lapis field may eventually turn into somewhat smooth limestone pavement। जो लेपिस वाले हमें जो लैंडफॉर्म मिलेंगे ना, वो हमें हमारी स्मूथ जो लाइमस्टोन की रॉक्स होगी उनमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। लेपिस एंड लेविस। ये देखो, जो ये हमें दिख रहा है ना, इसके पास पास जो भी चीजें डिपॉजिट होती जा रही है उसे ही हम लेवीज कहेंगे। ठीक है। और लेपी क्या होता है वो देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारी लेपीज होती है, मतलब वर्टिकल शेप में हमारा इरोजन होता रहता है। बीच बीच में से हमारी रॉक्स खाली हो जाती है ना, उसे हम लेपीज बोलते हैं। जैसे कि ये दिख रही है, ये यहाँ पे इरोड हो चुकी है बीच में से। ये देखो, ये देखो यहाँ से ये इरोड हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही हमारा प्रेसिपिटेशन होता है यानी बारिश आती है, तो वो इन रॉक्स में क्या हो जाती है, स्टो रॉक्स के ऊपर होती है, मान के चलो सरफेस के ऊपर है। और सरफेस पे जैसे रहेगी, तो ग्राउंड वाटर के थ्रू उसमें मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू, उसमें केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसका क्या होता रहेगा, हमारा इरोजन होता रहेगा। और इससे ऐसी शेप बन जाती है, जो भी डोलेमाइट या लाइमस्टोन या कैल्शियम से बनी हुई रॉक होती है ना, वो इरोड हो जाती है यहाँ पे आके।
अब इसमें है हमारे केव्स में कौन कौन सी फॉर्म हमारी बनेगी वो हम देखेंगे इस वाले। इन एरिया वेयर देयर आर ऑल्टरनेटिंग बिट्स ऑफ रॉक्स, जैसे कि सेल्स हो गया, सैंडस्टोन्स हो गए, क्वार्टर quartiles हो गए with the limestone or dolomite in between, or in area where limestone are dense, massive and occurring are thick beds, cave formation is prominent. Water percolates down either through the material or through cracks and joints and move horizontally along bedding plan. It is along these bedding plans that the limestone dissolve and long and narrow to wide gaps called cave result. हमारे जो भी जैसे कि माउंटेन्स एरिया होते हैं उसके अंदर एक लॉन्ग वाइड गैप हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं केव। There can be a maze of cave at different elevation depending upon the limestone beds and intervailing rocks. Cave normally have an opening through which cave streams are discharged. तो वो क्या होती है, उसकी streams होती है। Cave having opening at both of and are called tunnels. जो उसकी ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, टनल। अब इसमें भी हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। इसमें many depositional forms develop within the limestone cave. The chief chemical in limestone is calcium carbonate, which is easily soluble in carbonate water. It means carbon dioxide observed rainwater. This calcium carbonate is deposited when the water carrying in the solution evaporate or lose its carbon dioxide and ट्रैकल्स ओवर द रॉक सरफेस, और रॉक सरफेस को क्या कर देती है, बिल्कुल रफ कर देती है, वहां से इरोड कर देती है। अब उसी में टू थ्री टाइप्स के और बनते हैं हमारे डिपोजिशनल से। ये है स्टेलेक्साइट, स्टेलगमाइट और पीलर्स। अब स्टेलेक्साइट क्या होता है, जो ऊपर हैंग किया हुआ होगा, जो ऊपर की तरफ ऐसे लटका हुआ होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेलेक्साइट। और स्टेलगमाइट का मतलब, जी का मतलब ग्राउंड, और ये ग्राउंड पे रहेंगे। पीलर्स ऊपर से नीचे तक दोनों तरफ जॉइंट रहेंगे। स्टेलेक्साइट हैंग, जैसे मैं आपको इसमें पिक्चर दिखा देती हूँ, जैसे कि ये वाले आपने मूवीज वगैरह में बहुत देखे होंगे। ये देखो इस पिक्चर में आपको अच्छे से दिख भी जाएगा। ये देखो हमारे जो ये ऊपर की साइड में जो भी ये हैंग कर रहे हैं उसे तो हम कहेंगे स्टेलेक्साइट, और जो ये नीचे की तरफ है ना डिपॉजिट हुए, इसे कहेंगे स्टेलगमाइट। और जो ये पूरा का पूरा पिलर शेप में ऊपर से लेकर नीचे तक जॉइंट है उसे क्या कहेंगे, पिलर। ओके, तो ये वाले हमारे डिपोजिशनल जो भी केव के अंदर होते हैं उसकी हो गई। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Stalactites hang as isles of different diameters. Normally, they are bored at their bases and taper towards the free ends, showing up in a variety of forms. Stalagmites rise up from the floor of caves, फ्लोर के अप में रहते हैं। इनफैक्ट स्टेलगमाइट फ्रॉम ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस और थ्रू द थिन पाइप जैसे होते हैं of the stalactite immediately below it. Stalagmites may take the shape of a column, a dice, with either smooth rounded bulging
and or the my nature creator like a, जैसे कि इसमें भी दिखाया गया आपके, देखो ये फोन स्टेलेगमाइट लाइमस्टोन केव में देखने को ज्यादा मिलते हैं। डिप्रेशन, द स्टेलेगमाइट एंड स्टेलेक्साइड इवेंचुअली fuse to give rise to column and the pillars of different diameter। दोनों ही अगर फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वहां पे कॉलम या पिलर जैसे डिफरेंट टाइप के डायमीटर्स और लैंडफॉर्म का हमें अ, मिलता है फॉर्मेशन। अब आते हैं हमारे ग्लेशियर। ग्लेशियर से इसके इरोजन और डिपोजिशन से कैसे बनेंगे। मेसिव ऑफ आइस मूविंग एज सीट ओवर द लैंड, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और Piedmont Glacier if a vast sheet of ice is spread over the plain at the foot of mountain, or as liner flow down the slope of mountain in broad through like valleys, mountain and valley glacier are called glaciers. The movement of glacier is show unlike water flow. The movement could be few centimeters to a few meter a day or even less or more. ये क्या कहते हैं, फ्लो करते हैं कुछ सेंटीमीटर तक, डे में भी कर सकते हैं नाइट में। ग्लेशियर मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये पता होना चाहिए कि हमारे जो भी है वो कैसे मूव करते हैं ग्लेशियर, ये फोर्स लगता है हमारे ग्रेविटी का, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, मूव होते रहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लेशियर इन इट्स वैली के अंदर दिखाया गया है, इसमें पिक्चर है इसमें। वी हैव मैनी ग्लेशियर इन आवर कंट्री मूविंग डाउन द स्लोप एंड वैली इन हिमालयाज में ज्यादातर देखने को मिलते हैं हमें ग्लेशियर। हायर रीचेस ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर आर प्लेस सी सम ऑफ दैम। Do you know where one can see river Bhagirathi is basically fed by meltwaters from under the shoot यानी गोमुख ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से हमें देखने को मिलता है वो। इनफैक्ट अलकापुरी ग्लेशियर फीड वाटर टू अलकनंदा रिवर, और अलकापुरी अलकनंदा जो रिवर का जो वाटर आता है वो कौन से, अलकपुरी ग्लेशियर के अकॉर्डिंग आता है। रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी जॉइन टू ए मेक रिवर गंगा नियर देवप्राग। देवप्राग में आके ये दोनों क्या मिलती है, मिल जाती है अलकनंदा और भागीरथी। Erosion by glacier is tremendous because of friction caused by sheer weight of ice. The material plucked from the land by glacier usually large size, angular, bulk and block and block and fragments में होते हैं, get degrade along the floor or side of valley and causes great damage through abrasion and plunging. Glacier can cause significant damage uh, to even the weathered rocks and can reduce high mountain into low hills and plain. As glacier continue to move, अगर ग्लेशियर कंटिन्यू मूव करते रहेंगे, debris gets removed, divided get lower and eventually the slope is reduced to such as a extension that the glacier will be slope moving, leaving only a mass of low hills and vast out outwash plain along with another other depositional features। अब इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें भी हमारे एनुअल्स फंड्स, एनुअल फैंस वगैरह मिलते हैं। वॉश आउट प्लेन भी इसमें हमें देखने को मिलता है डिपोजिशनल से। अब फिगर में हमें दिखाया भी गया है कि ग्लेशियर के पोजीशन से एंड डिपोजिशन यानी इरोजनल और डिपोजिशनल फॉर्म से हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं। फर्स्ट है हमारा, इसके इरोजन से कौन कौन से बनेंगे। तो देखो इसमें ये पूरा का पूरा हमें डायग्राम दिया हुआ है। इसमें देखो वॉश आउट प्लेन जो होता है ना, जो मतलब बिल्कुल सरफेस पे होता है और बिल्कुल ऐसे वाटर के जैसे दिखता है, तो उसे हम वॉश आउट प्लेन कहते हैं। टर्मिनल
मोरेन, जो इसके पास के जो भी डिपोजिशनल के कंकड़ वगैरह होंगे वो होंगे। हैंगिंग वैली, जहाँ पे इधर उधर ग्लेशियर होंगे और इसके बीच में से हमारे ग्लेशियर का फ्लो होगा। और ये एट्रीज है, ये हॉर्न जैसी शेप दिख रही है, ये कोल होता है बीच का शेप। और ये हमारा सर्क होता है, सर्क का मतलब गड्ढा शेप, गड्ढे जैसी शेप। तो ये हमारे क्या है, इरोजन। अब देखो इसमें हमारा आ गया है इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्क का। सर्क आर द मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म इन glaciated mountains. The cirque quite often are found at the head of glacial valley. The accumulated ice cut these cirques while moving down the mountain slope. They are deep, long, and wide through or basin with the very steep concave to vertically dropping high walls at its head as well head side। अब इसमें क्या होता रहता है कि हमारे जो वो ज्यादा डीप कर देते हैं, यानी ग्लेशियर वहां से कहीं और चले जाते हैं और उस वहां पे इरोड करके चले जाते हैं, और साइड में भी इरोड करते हैं, डीप में भी इरोड करते हैं, तो वो एक शेप लेता है जिसे हम सर्क कहते हैं, जैसे गड्ढे टाइप में। ए लैक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफ्टन विद इन द सर्क आफ्टर द ग्लेशियर डिसअपियर। और जैसे उसमें कुछ वाटर फ्लो कर जाता है या वाटर आ जाता है, तो वो वहां से क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब मूव कर जाते हैं वो ग्लेशियर वहां से। सच लेक्स आर कोल्ड सर्क और टार्न लेक उसे बोलते हैं। उसे हम सर्क लेक भी बोल सकते हैं या टार्न लेक भी बोलते हैं, जैसे उसके अंदर पानी वगैरह आ जाता है। देयर कैन बी टू और मोर सर्क, वन लीडिंग इनटू अनदर डाउन बिलो इन स्टीप सीक्वेंस के थ्रू भी हो सकते हैं। तो सर्क आपको पता चल गया, या फिर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ उसमें। ये देखो हमारे सर्क ग्लेशियर ये रहा। ये देखो, यहाँ पे पहले क्या था, हमारे ग्लेशियर वगैरह थे, और फिर जैसे ही वो यहाँ से मूव किए, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक सर्क बन गया। और जैसे ही प्रिसिपिटेशन होगा और इस सर्क में हमारे क्या आ जाएगा, पानी, तो उसे हम कह देते हैं टान लेक या सर्क लेक भी बोल देते हैं। ये देखो, ये हमारी सर्क लेक हो गई। अब इसी में होते हैं हमारे हॉर्न्स एंड सीरिएटेड रिज, जो भी किससे बनते हैं, हमारे हमारे बनेंगे ये भी इरोजनल से। हॉर्न्स फ्रॉम थ्रू हेडवर्ड इरोजन ऑफ द सर्क वॉल्स। अब जो सर्क वॉल होता है उसका हेडवर्ड इरोजन होता है। इफ थ्री और मोर रेडिएटिंग ग्लेशियर कट हेडवर्ड अंटिल दियर सर्क मीट। अब इसके मिनिमम थ्री और मैक्सिमम बहुत सारे इसमें हेडवर्ड इरोजन होते रहते हैं। हाई शार्प पॉइंटेड एंड स्टीप साइड पीक्स called horn form that divided between cirque side walls or head walls get narrow because of progressive erosion and turn into serrated or saw-toothed ridge, sometimes referred to the uh, arrates with very sharp screed and zigzag outlines। जो हमें दिखती है उसमें, उसे ही हम कह देते हैं arrates। The highest peak in the Alps, Matterhorn, and the highest peak in the Himalayas, Everest, are in fact horn formed through headward erosion और radiating सर्क से हमारे बने रहते हैं। जो एक तो ये मैटन होर्न है, जैसे मैटन होर्न की मैं आपको क्या दिखाती हूँ।
मैटन यूरोप में हमें देखने को मिलता है। अल्पस स्टैंडिंग, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे भी ये शेप दी की है मैटन होम की। ये देखो, ये हमारा मैटन होम है, जो कि कहाँ है, यूरोप में। ये ऐसे ही 3D में हमें देखना हो तो ये रहा हमारा मैटन होम। दिख रहा है इसके 3 वर्ड से हेड वर्ड, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 वाला इरोजन है, और ये इधर के साइड में 3। ट्राइंगल के शेप में हमें क्या मिलता है, इसमें हेडवर्ड इरोजन देखने को मिलता है। तो ये कहाँ है हमारा मैटन होम, ये है हमारा यूरोप में। और यहाँ पे देखो बहुत सारी ऐसे, ये ग्लेशियर के डिपोजिशन से ही हुआ है, ग्लेशियर के इरोजन से हुआ है। और यहाँ पे देखो ये होता है हमारा वो साउथ प्लेन, जो नीचे जा रहा है ना ऐसे बह करके, बहुत। ये देखो इसमें ज्यादातर शेप है ना होन जैसी देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये डिपॉजिट हुए, इरोजन भी हुआ है इनका, तभी ये देखो नीचे जाते शेप सी है इनकी। ये हमें सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही। ये हमारे सी का लेवल्स हो गया। ओके, अब इसमें हम देखते हैं हमारा हिमालयास का, हिमालय का और देख लेते हैं। ये तो गया मैटरहॉर्न, और हिमालय में एवरेस्ट। ये देखो माउंट एवरेस्ट में भी ये क्या है, हमारे हेडवर्ड इरोजन हो रहा है इसमें भी, माउंटेन में। इसका भी हमें दिखने को मिल रहा है। हिमालय में ये ऐसे रेंजेस होती हैं। देखो ये माउंट एवरेस्ट है, हमारे हाईएस्ट पीक है हिमालयाज की, जिसका क्या है देखो, इधर 1 साइड इरोजन, इधर के साइड 2 साइड, इधर के साइड 3 साइड इरोजन हमें देखने को इसमें मिलता है। ओके, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे। ये हमें देखने को मिल रहा है, ये एरेटे, एरेटे जो ऐसे शेप होती है ना उसको बोलते हैं। जैसे कि इन पहाड़ों को देखो, जैसे ये मिलाने वाले इधर की साइड इरोजन, मतलब हमारी जो सर दिखेगी ना जिस साइड, उसी साइड हमें ये एरेस दिखेंगे। जैसे नाम लिख लेते हैं। ये तो कुछ और ही दिखा दिया है।
ये थ्री टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो इधर इसके क्या है, सर्क है। तो यहाँ से ये जो लाइन जैसे जा रही है ना, इसको कहेंगे हम ट्रेस। ओके। और हॉर्न आपको पता ही चल ही गया, सर्क भी आपको पता चल गया गड्ढा के। अब आते हैं हमारे ग्लेशियल वैलीज में। थ्रू glaciated valley are through like and U-shaped with broad floors and relatively relatively smooth and steep side. The valley may contain laterally debris or debris shape at the moraine with the swampy appearance. There may be lakes uh, gouted out of rocky floor or formed by debris within the valley. There can be hanging valley at an elevation on one or both sides of main glacial valley. The faces of divides or sharp of such hanging valleys opening into main glacial valley are quite often truncated to give them an appearance like triangular facade. Very deep glacial throats filled with seawater and making up shorelines in high altitude are called फेजोर्ड। अब फेजोर्ड क्या होता है वो और मैं आपको दिखा देती हूँ। फेजोर्ड होता है जो कि हमारे सी वोटर से जाके सीधा ऐड हो। फेजोर्ड। और जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं ज्यादातर, नॉर्वे में। ये सारे के सारे क्या है, हमारे सी से कनेक्टिंग है। देखो इतने बड़े बड़े ग्लेशियर है जो कि क्या है, सी से कनेक्टिंग है। ये डिपॉजिट होते रहते हैं और यहाँ से ग्लेशियर जाता रहता है। हर जगह आपको फजोड़ ही फजोड़ देखने को मिलता है, क्योंकि ये बिल्कुल सी के नियर बाई है। ओके। अब आते हैं हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पे। द अनअसॉर्टेड coarse and fine debris dropped by the melting glacier is called glacial till। अब वहां पे जो भी हमारे डिपॉजिट होंगे ड्रॉप साइज में, मेल्टिंग ग्लेशियर छोटे छोटे होके उसे हम क्या कहेंगे, ग्लेशियल टिल। Most of the rock fragments in till are angular to subangular in form, stream from by melting ice at the bottom, side or lower end of glacier. Some amount of rock debris small enough to be carried by such melt water stream is washed down and deposit। वहां से क्या होता है, वाटर आता रहता है और डिपॉजिट होता रहता है। Such glaciofluvial deposits are called wash-out deposits. Unlike till deposits, the outwash deposits are roughly stratified and assorts. The rock fragments in outwash deposits are somewhat rounded at their edges,
जो फिगर में हमें दिखाया गया है, शो ए फ्यू डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कॉमनली फाउंड इन ग्लेशियल एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं ये वाले, जैसे कि इसमें दिखा रखा है हमारा। जैसे वो साउथ प्लेन ये हो गया, बिल्कुल प्लेन एरिया दिख रहा है, ये माउंटेन है, यहाँ से ग्लेशियर पिघले साउथ। ये स्कर हो गया, स्कर का क्या रहता है कि एक साइड से और दोनों साइड से उठा रहता है, ड्रम्बलिंग एक साइड से रहता है। और टर्मिनल मोरेन क्या होते हैं, जो बीच में बीच के साइड में ऐसे यहाँ पे रहते हैं। ये हमारे किससे बनेंगे, डिपोजिशनल से, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से बनेंगे। जैसे कि मोरेन्स हो गए, स्कर हो गए, आउटवॉश प्लेन हो गया, ड्रम्बलिन्स हो गए, और उसके बाद तो ये वेव एंड करंट आ जाए, मतलब ग्लेशियल हमारा। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हमारे मोरेन से। दे आर लॉन्ग रिज ऑफ डिपोजिशनल और ग्लेशियल टिल। अब ग्लेशियल टिल जैसे इकट्ठा हो के एक लॉन्ग रिज बना लेते हैं। एंड टर्मिनल मोरेन आर long ridge of debris deposited at the end of the glacier. Lateral moraines form along the side parallel to the glacial valley. Lateral कहाँ होंगे, हमारे ग्लेशियल वैली के बिल्कुल पैरेलल में होंगे। The lateral moraines may join a terminal moraines forming a horseshoe shaped ridge के साइड में एक दूसरे को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे हमारे। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ लेटरल और टर्मिनल मोरेन। ये लेटरल मोरेन है, यहाँ पे देखो जैसे डिपॉजिट होते जाए। ये मिडल मोरेन, यहाँ पे से डिपॉजिट होते जा रहे हैं। इनमें आप देख सकते हो, देखो मिडल मोरेन या फिर हम टर्मिनल मोरेन बोल सकते हैं, जो कि क्या होते हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल में होते हैं। हमारी जो भी वैलीज होगी ना उसके बिल्कुल पैरेलल में हो, और जो बीच में होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, लेटरल मोरेन। अब आगे है, द लेटरल मोरेन में बी join ए टर्मिनल मोरेन फॉर्मिंग ए हॉर्स शो शेप्ड रिज के टाइप में ये ज्वाइन करते हैं। दे कैन बी मेनी लेटरल मोरेन्स ऑन ईदर साइड इन ए ग्लेशियल वैली। दिस मोरेन partially or fully over their origin to glacio-alluvial water pushing up material to side of glacier. Many valleys glacial retreating rapidly leave an angular sheet of till over these valley floor. Such depositional varying gently in thicker and in the surface of topography are called ground moraine. अब जो भी हमारे थिक साइज के होंगे उसे हम ग्राउंड मोरेन कहेंगे। The moraine in the center of glacial valley flanked by lateral moraine is called medial moraine. They are imperfectly formed as compared to the lateral moraine. Sometimes medial moraine are indic- uh,
डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ग्राउंड मोरेन से, मतलब उनको अलग दिखा पाना या डिफरेंट दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो दोनों सेम सेम होते हैं। अब आता है हमारा इसकर। When glacier melt in summer, the water flow on the surface of ice or ships down along the margins or even moves through holes in the ice. Their water accumulate beneath the glacier and flow like a stream in the channel beneath the ice. Such streams flow over the ground, not in a valley cut in the ground, with ice forming its banks. Very coarse materials like boulders and blocks, along with some minor fraction of rock debris carried into the stream styles in valley of each beneath the glacier, and after the ice melts can be found as a sincere is called iskar। जैसे कि कोई भी ग्लेशियर जा रहा है और जैसे यहाँ से मान लो ग्लेशियर उठा और ग्लेशियर मूव किया और ग्लेशियर मूव करने के बाद वो मेल्ट हो गया और मेल्ट होने के बाद जो भी हमें डिपोजिशन में देखने को मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, इसकर कहेंगे। अब आता है हमारा आउटवॉश प्लेन। द प्लेन एट द फुट ऑफ द ग्लेशियल माउंटेन और बिहाइंड द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंट, बिहाइंड beyond the limit of continental ice sheet or covered with the glacio-alluvial deposition in the form of board flat alluvial fans, which may be joined from the outwash plain of glacial silt, sand and clay। अब देखो outwash plain ये यहाँ पे हमारे मोरेन्स वगैरह यहाँ पे रहेंगे और वो क्या करते हैं, हमारे आउटवॉश प्लेन को ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमारा है डर्मलिन्स। Dermalines are smooth oval shaped trees like features composed mainly of glacial till with the some masses of gravel and sand। ये क्या रहते हैं, हमारे ग्लेशियल टिल हो गए या फिर और ग्रेवल हो गए या सैंड हो गए, उसके जो भी छोटे बड़े मटेरियल होते हैं उससे क्या बनता है हमारा ड्रमलिन। The long axis of drumlin are parallel to the direction of ice movement. The may measure up to 1 kilometer to length 30 kilometer or so in length, और भी ज्यादा हो सकते हैं। One end of the Drumlin facing the glacier called two toes and the blunder and the steeper than the other end of called tail। अब इसमें इसके दो एंड होते हैं हमारे ड्रमलिन के, एक तो स्टार्टिंग और एक एंडिंग होता है, जिसको एंडिंग को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और स्टार्टिंग को जो फेसिंग होगा उसे हम स्टोर्स कहेंगे। The drumbling formed due to the dumping of rocks debris beneath heavily located ice through fissure in the glacier. The stores and gets plumped due to the pushing by the moving ice. Drumlins give an indication of the direction of glacier movement। और ड्रम्बलिन क्या करते हैं, हमारे इंडिकेशन देते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हमारे ग्लेशियर ने मूव किया था, तो वो हमारे हो जाएंगे ड्रमलिन। अब हम आगे का पढ़ेंगे इसमें वेव्स एंड करंट इसके बाद में। ओके, थैंक यू।